सो दोस्तों आज हम स्ट्रेट लाइन डिस्कस करने जा रहे हैं। स्ट्रेट लाइन में आज मैं सिर्फ बेसिक इक्वेशन की जो उसकी फॉर्म्स हैं वो डिस्कस करूंगा एंड नेक्स्ट टाइम हम उसके हर एक फॉर्म के एक एक या दो दो या अच्छे कोई भी क्वेश्चन होंगे तो वो लेंगे। सो लेट अस डिस्कस स्ट्रेट लाइन। सो स्ट्रेट लाइन में लेट अस से दिस इज़ द लाइन। सो लाइन के लिए हमें क्या चाहिए, कोई भी एक पॉइंट ऑन द लाइन एक्स वाई एंड दूसरा स्लोप ऑफ द लाइन, द एंगल विच इट इज़ मेकिंग विद एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो अगर हमें इसकी स्लोप पता है देन वी कैन राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन। दिस इज़ कॉल्ड स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। दिस इज़ कॉल्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। m is the slope of the line, m is equal to tan theta and c is the y-intercept. This is the y-intercept, this is c. So this is the equation of the line. स्लोप की बात करूं तो let us say हमें ये लाइन दी हुई है, this is making an angle theta with x axis. So then slope is given by tan theta and let us say हमें दो पॉइंट दिए हुए हैं, पॉइंट P1 P2. So then this is P1, this is P2, this is also angle theta. So tan theta is equal to, let us say P1 is x1 y1, P2 is x2 y2, then tan theta is equal to y2 minus y1 over x2 minus x1. या प्रूव कर सकते हैं very easily. Then this is also equal to slope. So a slope is given by this equation. So अगर कुछ फॉर्म्स की बात करें लाइन की, स्ट्रेट लाइन की जो फॉर्म्स हैं, लेट अस से फर्स्ट इज पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म, हमें कोई भी एक पॉइंट दिया हुआ लाइन पे, let us say this is the point x1 y1, slope of the line is m, then we can find the equation y minus y1 is equal to m into x minus x1, where m is the slope of the line theta. This is the angle theta. So this is called point slope form. Second, two point form. Two point form क्या होती है? Two point form is if we are given two points x1 y1 x2 y2, so then just replace m by y minus y1 is equal to y2 minus y1 over x2 minus x1 x minus x1. This is two point form. Then another form is slope intercept form, जो अभी हमने लिखी थी, slope intercept form. Slope intercept form is given by y is equal to mx plus c, like this. This is the intercept and slope is given by m. So this is slope intercept form. This is third form. Then let us see one more form, that is called intercept form of line. Intercept form of line का मतलब है, let us say this is the line, this is A, this is B. Then equation of this line is x by a plus y by b is equal to 1. This is called intercept form. Intercept form means x intercept is a, y intercept is b. So this is intercept form. Next is normal form. नॉर्मल फॉर्म में हमें लेट अस से ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से ओरिजिन से 0 0 से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन द स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है p, ये अल्फ़ा एंगल बना रही है। देन इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा इज इक्वल टू p. x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा इज इक्वल टू p. So this is called normal form. Then last form is symmetric form. Symmetric form में let us say कोई भी लाइन
Let us say this angle is theta, its slope is m is equal to tan theta. Let us say we have any point P1 having x1 y1 और उससे एक दूर पॉइंट है r डिस्टेंस के ऊपर दूर पॉइंट है, let us say p x y. So then equation of this line is given by x minus x1 over cos theta is equal to y minus y1 over sin theta, and this is equal to r. This is called symmetric form. This is called symmetric form. ये एक बहुत यूज़फुल फॉर्म है इक्वेशन की. सो लास्ट टॉपिक जो मैं आज करवाना चाहूँगा दैट इज़ एंगल बिटवीन टू लाइंस. अगर हमें दो लाइंस दी हुई हैं, लेट अस से वन लाइन इज़ दिस, अनदर लाइन इज़ दिस इज़ थीटा, दिस इज़ थीटा 1, दिस इज़ थीटा. लेट अस से वी हैव टू फाइंड थीटा, द एंगल बिटवीन दीज टू लाइन. ये है थीटा 2. m1 is equal to tan theta 1, m2 is equal to tan theta 2. We have to find angle between these two lines. Let us say tan theta अगर हमें पता चल जाता है तो हमें एंगल बिटवीन टू लाइंस मिल जाएगा. नाउ एज यू नो, कोई भी ट्रायंगल में, let us say this is a triangle, then this angle plus this angle, let us say this is alpha, this is beta, and this angle is always equal to sum of these two angles alpha plus beta. इसको प्रूव करना भी बड़ा सिंपल है. कैसे प्रूव करेंगे? अल्फ़ा प्लस बीटा, देन ये वाला एंगल आपका होगा 180 माइनस दिस डिग्री, 180 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, एंड 180 माइनस, लेट अस से दिस एंगल इज़ 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, एंड ये भी स्ट्रेट लाइन इज़ ऑल्सो 180 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा. सो दिस एंगल विल बी सम ऑफ दीज टू एंगल्स. सो यहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे. आई होप आई एम क्लियर. मेरे कहने का मतलब है कि लेट अस से कोई भी एंगल है, यहाँ पे लेट अस से दिस इज़ अल्फ़ा, दिस इज़ बीटा, लेट अस से दिस इज़ गामा, देन दिस एंगल, ये वाला एंगल अल्फ़ा प्लस बीटा होगा. कैसे? लेट अस से दिस इज़ गामा, गामा इज़ 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, एंड ये वाला और ये वाला दोनों एंगल कितने होने चाहिए? लेट अस से ये डेल्टा है, देन डेल्टा प्लस गामा इज़ इक्वल टू 180 डिग्री. सो डेल्टा इज़ 180 डिग्री माइनस गामा, एंड 180 माइनस गामा इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा. सिंपल थ्योरम आपने 10th में पढ़ी होगी कि अगर ये एंगल अल्फ़ा बीटा है तो आउटसाइड एंगल जो होगा ये दोनों का समेशन होगा. तो यहाँ पे हम इसको यूज़ करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू यूज़ दिस. सो थीटा 2 will be equal to theta plus theta 1. It means theta is equal to theta 2 minus theta 1. अगर हम दोनों साइड tan लें, tan theta is equal to tan of theta 2 minus theta 1. So that is equal to tan formula. Tan formula क्या होता है? tan of a, अगर मैं माइनस की बात करूँ, tan of a minus b is equal to tan a minus tan b over 1 plus tan a tan b. So this is tan formula. So अगर मैं इसको यहाँ लगा दूँ, then that will be tan theta 2 minus tan theta 1 divided by 1 plus tan theta 1 tan theta 2. So this is what? m2 minus m1 or 1 plus m1 m2. So angle between these two lines is given by this formula, m2 माइनस m1 और 1 प्लस m1 m2. यहाँ से दो चीज़ें क्लियर होती हैं. अगर हमारी लाइंस पैरेलल हैं तो एंगल बिटवीन देम विल बी 0, और दोनों की स्लोप क्या होगी? फॉर पैरेलल लाइंस m1 इज़ इक्वल टू m2. फॉर पैरेलल लाइंस दोनों की स्लोप इक्वल होगी. एंड फॉर परपेंडिकुलर लाइंस, लेट अस से फॉर परपेंडिकुलर लाइंस angle between them will be 90 degree. Tan 90 degree is not defined. Tan 90 degree not defined है, which implies what? m1 1 plus m1
m2 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स m1 m2 इज इक्वल टू -1। सो ये दो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं। अगर पैरेलल लाइंस होंगी, कोई भी दो पैरेलल लाइंस हैं, तो हमारा दोनों की स्लोप बराबर होगी। अगर परपेंडिकुलर होगी तो दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। सो अगर मैं यहाँ से कहूँ, सो लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, अगर मैं यहाँ से कहूँ कि ये एक लाइन है, लेट अस से y इज इक्वल टू mx प्लस सी, एंड ये एक लाइन है, दोनों पैरेलल हैं, तो इसकी क्या इक्वेशन हो सकती है? इसकी इक्वेशन हो सकती है mx प्लस डी कैन बी एनी अदर कांस्टेंट। इसकी इक्वेशन ये होगी। अगर मैं कहूँ इसके परपेंडिकुलर कोई लाइन है, दिस लाइन, इसकी क्या इक्वेशन होगी? y इज इक्वल टू -1/m इंटू एक्स प्लस ई। E इज़ एनी अदर कांस्टेंट, क्योंकि इन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या आएगा? -1 आएगा। सो ये इसके परपेंडिकुलर की इक्वेशन है और ये इसके पैरेलल की इक्वेशन है। आई होप आई एम क्लियर। सो लेट अस कंक्लूड टुडेज टॉपिक। आज हमने क्या क्या डिस्कस किया है? आज हमने डिस्कस किया है पॉइंट, फिर पॉइंट से हम क्या क्या फॉर्मूलाज ड्राइव कर सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, फिर ट्रायंगल के इक्वेशन हमने की कि ट्रायंगल में एरिया कैसे फाइंड करना है डिटर्मिनेंट मेथड से, कोलिनियर कैसे प्रूव करने हैं पॉइंट ट्रायंगल मेथड से, और वैसे डिस्टेंस फार्मूले से कैसे हम प्रूव कर सकते हैं पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है या स्क्वायर है, कैसे हम प्रूव कर सकते हैं ट्रायंगल इक्विलेटरल है, ट्रायंगल आइसोसीलेस है, राइट एंगल ट्रायंगल है। उसके बाद हमने सेक्शन फार्मूला किया, सेक्शन फार्मूला से कैसे हम प्रूव कर सकते हैं कि पॉइंट्स कोलिनियर हैं। देयर आफ्टर वी वेंट टू फाइंड आउट द सेंट्रॉइड, देयर आफ्टर वी वेंट टू फाइंड आउट द इन सेंटर के बाद हमने स्ट्रेट लाइन डिस्कस करी। स्ट्रेट लाइन में हमने डिस्कस किया एंगल बिटवीन टू पॉइंट्स, एंगल बिटवीन टू लाइंस के बाद हमने स्लोप फाइंड करी, और अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो स्लोप बराबर होगी, दो लाइन परपेंडिकुलर है तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। तो ये आज हमने मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्कस किया। आगे हम स्ट्रेट लाइन की जो और फॉर्म्स हैं, नॉर्मल फॉर्म के क्वेश्चन करेंगे या सिमेट्रिक फॉर्म के क्वेश्चन करेंगे। तो बने रहिए, जुड़े रहिए चैनल के साथ और पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।